Welcome to the fourth video on hashing, which is about collision resolution technique. And here we'll use two methods: quadratic probing and double hashing. So prior to this, in video number three, we have discussed collision resolution technique using linear probing. But here we'll use quadratic probing and double hashing. So let's start with this video. So let's have a little recap that I've already told you that if there is a collision, then to resolve collision, there are two techniques. One is open addressing and one is separate chaining. Fine. Okay. Then we are currently discussing the collision resolution by open addressing. And in open addressing, we have three techniques. One is linear probing, which we have already discussed in video number 3. And today in video number 4, we'll discuss quadratic probing and double hashing. So what was drawback? What was drawback in linear probing? It was creating a clustering. So just because of that, we are now using quadratic probing. Let's see the quadratic probing. What quadratic probing is saying is that suppose a record R, suppose there is a record R with key value K, fine, has a hash address H. Suppose that on applying some hash address on this particular K, you have found that H is the address, final index. Now, then instead of searching the location with address H, H plus 1, H plus 2, we were doing this in linear probing. No, we were doing this in linear probing. If suppose H is filled, then we search for H plus 1, we search plus for H plus 2 and then H plus 3. We were doing this in linear probing, but in quadratic probing, we linearly search the location with address H. So instead of this, we'll search H, H plus 1, H plus 4, H plus 9, that is H plus I square. That is previously in linear probing, we were doing H plus I. But in quadratic probing, we'll do H plus I square. That is, if the value is 0, then it will be 0. If the value is 1, it will be H plus 1. If the value will be 2, then it will be H plus 4. That is, if something is not, suppose there is clashing. So now I'm giving you example. Suppose this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, and this is something. Now suppose you are getting after applying hash function on key K, you are getting this location. No, so in linear probing, what you do, you look for this position, but now you will look for plus 1 square, that is 1 plus 1, that is 2 square, that is 4. Then you look for 8, then you look for S4, then you look for 3 square, 9, then you look for like this, no, 16 and same. So in quadratic probing, instead of linearly searching, we do a quadratic probing. Fine. So what is the formula for that? H dash HKI. Suppose you want to calculate address of H and index, suppose it's I, where I is from 0 to m minus 1, where what is m? Location in hash table. Fine. Size of hash table. Fine. Suppose so HK, that is H dash K, which is what? K mod M. Fine. K mod M, then C1I, then C2I square mod M. Fine. So what was that formula of linear probing? H dash K plus I mod M. But here we are, since we are doing quadratic probing, so we are taking two more value I and I square. Now you might be thinking about ये C क्या है? ठीक है, C क्या है और ये C कैसे हुआ, ये कैसे आया, अब इसको डिस्कस करते हैं. चलो, तो अब ये C क्या है, C कैसे आया? तो देखो, वेयर एज इन लीनियर प्रोबिंग, अगर मैं लीनियर प्रोबिंग की बात करूं, तो लीनियर प्रोबिंग में एच डैश, वेयर एज इन लीनियर, एच डैश इज एन ऑक्सिलरी हैश फंक्शन C1 और C2, वेयर एज इन लीनियर प्रोबिंग एच डैश इज एन ऑक्सिलरी फंक्शन. तो एच डैश हमारा क्या है, जैसा हमने लीनियर प्रोबिंग में दिया था वैसा ही है. C1 C2 क्या है? ऑक्सिलरी कांस्टेंट है, ये कुछ कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 4 5 कुछ भी हो सकता है. और I जो है हमारा, वो 0 से m-1 तक जाएगा. द इनिशियल पोजिशन, तो इनिशियल पोजीशन क्या है, ये है, और लेटर फिर हम उसके बाद प्रोबिंग लगाते रहेंगे. ठीक है, तो यहां इस तरीके से हम चलते रहेंगे और आगे काम करते रहेंगे. तो लेट्स स्टार्ट, कैसे करना है इसको, किस तरीके से करना है, आगे बढ़ते हैं. चलो, अब हमारे सामने क्वेश्चन है जो हमने पहले सॉल्व किया हुआ है. कंसीडर, अभी आपको ये की है, ये की एक टेबल के अंदर इंसर्ट करनी है इनटू हैश टेबल, जिसका साइज m11 है. क्वाड्रेटिक प्रोबिंग इस्तेमाल करनी है. आपको पता है फॉर्मूले में क्या होता है, C1 और C2 होता है. तो मान लो C1 की वैल्यू 1 है, C2 की वैल्यू 3 है, और हैश फंक्शन जो ना आपको लेना है वो k mod m लेना है. फाइन. ओके, चलो, तो आपके पास इनिशियल हैश टेबल की कंडीशन ये है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं भरा है, खाली है. अब आओ, चलो, क्योंकि दिया क्या है, C1 की वैल्यू 1, C2 की वैल्यू 3, और फॉर्मूला क्या है, k mod m प्लस
आई, क्योंकि सी की वैल्यू कितनी 1 और C2 की वैल्यू कितनी 3i स्क्वायर मॉड m। ठीक है, अब आपको हर वैल्यू को इसमें पुट करना है। सबसे पहले 74, तो 74 सबसे पहले i की वैल्यू 0 होगी। 74 0 क्या हो जाएगा, 74 मॉड 11 प्लस 0, क्योंकि i की वैल्यू 0 है, दिस इज 0, 0 प्लस 3 इंटू आई का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 होगा। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, 8 मॉड 11, और 8 मॉड 11 क्या होता है 8। तो अब हम देखेंगे क्या T8 फ्री है, हाँ T8 फ्री है, तो T8 में हम क्या पुट कर देंगे 74, आप देखिए 78 हमने 74 पुट कर दिया। अब आती बात 28 की, अब 28 देखो, तो फॉर्मूला क्या है 28 0, अब 28 मॉड 11 प्लस आई की वैल्यू 0, फिर इधर भी आई की वैल्यू 0, सॉल्व किया तो इधर 6 हो गया, मॉड 11 तो 6 आ गया। T6 फ्री है, हाँ जी फ्री है। ठीक है, तो T6 में हमने 28 डाल दिया, चलो 28 भी हो गया। 36 देखो, 36 फॉर्मूला में पुट किया, करते करते सॉल्व करते आ गई वैल्यू 3, T3 फ्री है, हाँ जी फ्री है, तो T3 में हमने 36 डाल दिया। अब देखो 3 वैल्यू आ चुकी है। अब फोर्थ वैल्यू देखो 58, तो 58 0 फॉर्मूला में पुट किया, फिर से सॉल्व किया, आंसर आ गया T3। अब T3 तो फिल नहीं है, क्योंकि T3 तो फ्री नहीं है, क्योंकि T3 ऑलरेडी भरा हुआ है। क्यों, क्योंकि T3 इज नॉट फ्री, बिकॉज वहां पे ऑलरेडी 36 है। तो हम नेक्स्ट प्रूफ लगाएंगे और उसमें फॉर्मूला में पुट करेंगे। अब देखो फॉर्मूला क्या है, 58 मॉड 11 प्लस C1 कितना था 1, और i की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 3 इंटू, अभी सी की C2 की वैल्यू कितनी थी, C2 की वैल्यू 3 थी, और I की वैल्यू कितनी है 1 स्क्वायर, दिस इज 1 स्क्वायर, दिस इज रॉन्गली रिटन, दिस इज 1 स्क्वायर। फाइन, अब 1 स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, तो 3 प्लस 1 प्लस 3 मॉड 11 किया, तो ये हो गया आपका 7 मॉड 11, ये कितना आ गया 7। तो फाइनली पहले हमने 3 में चेक किया, लेकिन लीनियर प्रोबिंग होता तो हम 4 पे चेक करते हैं, लेकिन अब हम 4 पे चेक करना करके 7 पे चेक करें, और देखो 7 पे 58 को हमने पुट कर दिया। तो इसी तरीके से हम मेथड अप्लाई करते रहेंगे और वैल्यू को पुट करते रहेंगे। ठीक है, तो इससे कौन सी प्रॉब्लम हट गई, इससे प्रॉब्लम हमारी क्लस्टरिंग की प्रॉब्लम हट गई। फाइन, ओके, सपोज करो हमारा ये भी सपोज करो 57, सपोज करो 57 ये भी फील्ड होता, मान लो यहाँ पे कोई कुछ वैल्यू होती, तो फिर हम इसी जगह यहाँ पे 2 पुट करते, तो 2 पुट करते तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाता। फाइन, और इस तरीके से हम फॉर्मूले को निकालते। फाइन, तो ये मुझे बताना था, ये था हमारा क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। अब इसके बाद अब हम पढ़ेंगे डबल हैशिंग। अब हम क्या पढ़ेंगे, डबल हैशिंग। मतलब डबल हैशिंग के नाम से ही मुझे समझ में आ रहा है, डबल हैशिंग का मतलब एक हैश फंक्शन नहीं, एक की के ऊपर 2 हैश फंक्शन लगाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो डबल हैशिंग इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक अवेलेबल फॉर ओपन एड्रेसिंग। मैंने बताया था ओपन एड्रेसिंग में 3 तरीके हैं, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, दोनों हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं डबल हैशिंग। तो डबल हैशिंग कह रहा है बेस्ट टेक्निक है ओपन एड्रेसिंग की, बिकॉज द परम्यूटेशन प्रोड्यूस हैव मेनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रैंडमली चूजन परम्यूटेशन, क्योंकि इसमें बहुत ही रैंडम चूजन परम्यूटेशन है। क्यों, क्योंकि एक हैश फंक्शन नहीं लगा रहे हम, 2 हैश फंक्शन लगा रहे हैं। डबल हैशिंग यूजेस हैश फंक्शन ऑफ फॉर्म h1k प्लस h2k, मतलब एक की के ऊपर 2 हैश फंक्शन लगा रहे हैं और साथ में i से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, उसके ऊपर फिर हम मॉड m लगा रहे हैं, वेयर h1 एंड h2 आर ऑक्सिलरी हैश फंक्शंस, m इज द साइज ऑफ हैश टेबल। तो h1 मान लिया k मॉड m और h2 मान लिया k मॉड m डैश, जहां पे m डैश थोड़ा सा कम होगा किससे, m से, मान लिया m-1 और m-2। जैसे अगर मान लिया m 11 है तो m डैश जो हो गया वो m डैश हो सकता है, या m डैश हमारा 9 हो सकता है। तो इस तरीके से हमें फॉर्मूले में पुट करना है और डबल हैशिंग लगानी है। तो लेट्स स्टार्ट विद डबल हैशिंग। फाइन, ओके, तो डबल हैशिंग में क्या दिया है आपको, ये कुछ कीज दी है जो आपको डबल हैश करना है हैश टेबल के अंदर, जिसका साइज m11 है। आप डबल हैशिंग लगानी है। कंसीडर एन ऑक्सिलरी फंक्शन h1 क्या है हमारा k मॉड m, और h2 क्या है k मॉड m, जहां पे m की वैल्यू 11 है और m डैश की वैल्यू 9 है। फाइन, ओके, यहां आपको मैं ऑलरेडी बता चुका था। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखो कैसे हो रहा है। सबसे पहले 76 स्टोर करना है। तो आपको पता क्या पता है आपको कि h1 सबसे पहले आप पहला हैश फंक्शन लाएंगे 76 के ऊपर, तो k मॉड m है 76 मॉड और m की वैल्यू 11 थी, तो आंसर आ गया 10। फिर आप h2 लगाएंगे किसके ऊपर, 76 के ऊपर, उसकी वैल्यू क्या थी 76 मॉड 9 थी, तो वो आ गया 4, 2 निकल चुका है। अब फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला क्या था, h k i का फॉर्मूला क्या था, h1 k प्लस i h2 k मॉड m, ये था ना मॉड m। अभी i की वैल्यू कितनी 0, तो आप पहला वैल्यू 10 है, दूसरी वैल्यू 4 है, लेकिन i की वैल्यू तो 0 है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 10 मॉड 11, और आंसर आ गया 10। तो हमारा जो 76 है वो कहां स्टोर हो रहा है, 76 हमारा 10 पे स्टोर हो रहा है। फाइन, चलो अब आई 26 की बारी।
तो इसी तरीके से मैंने 26 पे पहला फॉर्मूला लगाया तो आंसर आ गया 4। फिर H2 लगाया 26 के ऊपर तो फिर आंसर आ गया हमारा 8। फिर इस पे पुट कर दिया तो पहले 4 फिर 8, लेकिन आई की वैल्यू 0 तो क्या करता है, तो आंसर आ गया 4 मॉड 11, आंसर आ गया 4। तो अब 4 को हम 4 पे हम 26 को सेव कर लेंगे, तो 4 पे हम 26 को सेव कर लिए, बिल्कुल ठीक है। अब आओ 37 लगाया तो 37 के ऊपर पहले हमने 11 वाला मेथड लगाया तो आंसर आ गया 4। फिर 37 के ऊपर हमने 9 वाला m लगाया तो आंसर आ गया 1। अब इस फॉर्मूले में पुट किया तो 4 है और यहां पे तो 0 आई की वैल्यू, तो आंसर आ गया 4। अब भाई अब आंसर अगर 4 आ गया तो भैया ये 37 को कहां पुट करना है। ओके तो आपने देखा कि ये जो 4 है और वो दैट इज ये 37 कहां पे आ रहा है, फोर्थ लोकेशन पे, और 26 कहां पे आ रहा है, फोर्थ लोकेशन पे। तो ये हो गया कोलिजन, यहां पे हो गया कोलिजन, COLLISI, और यहां पे हो गया कोलिजन। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि कोलिजन हो गया तो क्योंकि T4 क्या लिखा है देखो साफ साफ, T4 इज नॉट फ्री, द नेक्स्ट प्रोब इज द सीक्वेंस, फिर 1 से करेंगे, पहले आई की वैल्यू 0 थी, फिर आई की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, अब आई की वैल्यू 1 होगी, तो दैट इज 4 + 1 × 1 mod 11, ठीक है, 4 + 1 × 1, क्योंकि वो यहाँ पे वैल्यू 1 हो गई, mod 11 = 5, mod 11 = 5। तो अब नई वैल्यू जो हमें मिल गई वो मिल गई 5 ना, एकदम रैंडम मिली है 5, ठीक है, तो 5 मिल गई। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या आ गए, 5 में हमने क्या पुट कर दिया, 37, ठीक है, ओके। फिर 59 है, फिर 59 से उसी तरीके से करेंगे, फिर वो भी फ्री नहीं मिला, देखो 59 को हमने सॉल्व किया और 59 को सॉल्व करने के बाद वो भी 4 पे आ गया, तो यहाँ पे फिर से कोलिजन हो गया, फिर से कोलिजन हो गया। अब देखो फिर हमने 59 और 1 यूज किया, तो जब 59 और 1 यूज किया तो देखो अब दोबारा यहाँ पे जब हमने 37 और 1 यूज किया तो हमें वैल्यू मिली 5। जब यहाँ पे जब 4 पे आया और उस पे हमने 1 यूज किया तो वैल्यू देखो कितनी मिली, 9। तो एट रैंडम हमें एकदम 9 वैल्यू मिली, ठीक है। तो यहाँ पे क्लस्टरिंग जैसी प्रॉब्लम जो अराइज हो रही थी वो बिल्कुल नहीं हुई और वो खत्म हो गई, ठीक है। तो ये 59 हमारा यहाँ पे स्टोर हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डबल हैशिंग का करते हैं।